Hello students. In the previous part 7 we discussed about oxygen, ozone, sulfur dioxide, sulfuric acid and their preparation, physical and chemical properties. Today we are discussing about chlorine, hydrochloric acid, interhalogen compound and xenon compounds. So let's start with chlorine there. So chlorine, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लोरस और क्लोरस का मीनिंग रहता है ग्रीनिश येलो. तो आपका ये कंपाउंड ग्रीनिश येलो कलर का रहता है ना. हाउ टू प्रिपेयर? सो यू कैन प्रिपेयर इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नस डाइऑक्साइड. इट इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन देयर, मैग्नीज क्लोराइड एंड वाटर. देन with the help of potassium permanganate. So potassium permanganate, it is treated with hydrochloric acid. It produces chlorine as a major product, potassium chloride, manganese dichloride and water. Third preparation is with the help of sodium chloride there. So sodium chloride is treated with manganese dioxide, sulfuric acid. So we are getting here chlorine as a major product. Side product, sodium hydrogen sulfate, manganese chloride and water. Then decans process. In the decans process, what we are doing? We are treating here hydrochloric acid with atmospheric oxygen here in presence of CuCl2 at temperature 723 Kelvin. So here we are getting chlorine here. Next one, electrolytic process. So we are passing electricity through brine. Now what is brine? Brine is a 10% sodium chloride. यानी हम इसमें क्या करते हैं? हम 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं 90 ml वाटर में, और ये जो हमारा एक्वियस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, दिस इज नोन एज अ ब्राइन. ओके, सो व्हेन वी पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस ब्राइन, this is also known as aqueous sodium chloride. You are getting here hydrogen, chlorine and sodium hydroxide. अब सबको पता है ये जो क्लोरीन है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्लोरीन कहाँ पे कलेक्ट होगा? इट विल कलेक्ट एट एनोड. हाइड्रोजन गैस कहाँ पे कलेक्ट होती है? कैथोड पे. सो दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. नाउ नेक्स्ट, physical properties of chlorine here. So chlorine, it is a greenish yellow, pungent, suffocating odor gas. It is a poisonous. It is easily liquefied, which boils at 293 Kelvin. It dissolves in water to give chlorine water, and it is 2 to 5 times heavier than air. अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी हम ये देखेंगे क्लोरीन किस किस के साथ रिएक्ट होता है. So it reacts with first metal. So when reacts with aluminium, it gives aluminium chloride. When it reacts with sodium, gives sodium chloride. When reacts with iron, it gives ferric chloride there. Chlorine reacts with non-metal. So when phosphorus reacts with chlorine, you are getting here phosphorus trichloride. Sulfur reacts with chlorine, you are getting here sulfuryl chloride here, S2Cl2. क्लोरीन हैज़ अ ग्रेट अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. ये इंस्टेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है. सो दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. दिस क्लोरीन इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन. तो हम एक कंपाउंड ले रहे हैं हाइड्रोजन का, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, यू आर गेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर देयर. Next one with ammonia. So when this chlorine it reacts with ammonia. अगर आप अमोनिया एक्सेस लेते हो यहाँ पे तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन. अगर क्लोरीन को आपने एक्सेस लिया और उसको ट्रीट किया अमोनिया के साथ तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन, ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट वन विथ अल्कली. तो अल्कली में हम प्रिपेयर कर रहे हैं NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू आर गेटिंग हियर सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर.
When chlorine is treated with hot and concentrated NaOH, you are getting again here sodium chloride and water. अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है, when NaOH is a cold and dilute, तो आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड मिल रहा है यहाँ पे, एंड व्हेन इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड. अदरवाइज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर ये प्रोडक्ट आपके कॉमन है. व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विथ स्लैक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको यहाँ पे मिलता है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. नेक्स्ट वन विथ हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन में दो टाइप की वेराइटी. अब देखो ये है मीथेन. मीथेन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, यू आर गेटिंग हियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन. तो आप देखो यहाँ का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है क्लोरीन से. एंड व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथिन ये अनसैचुरेटेड है, तो आपको हमेशा रिएक्शन कौन सी दिखाई देगी? एडिशन. यहाँ पे एडिशन होगा. एंड यू ऑब्जर्व द प्रोडक्ट. इथिन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, यू आर गेटिंग हियर व्हाट इज द नेम? 1,2 डाइक्लोरोइथेन. Then oxidizing property. Chlorine is a good oxidizing agent. This chlorine, it oxidizes ferrous sulfate to ferric sulfate. सोडियम सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है सोडियम सल्फेट में. क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, या क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस आयोडीन टू आयोडिक एसिड देयर. और कैसे पहचानोगे इनका ऑक्सीडेशन हुआ है? सिंपल. आयरन हियर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, हियर इट इज अ +3. यहाँ पे आयरन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? एवरी टाइम क्लोरीन इज अ रिस्पॉन्सिबल. आप सभी रिएक्शन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये करो, कंपेयर करो. यू कंपेयर हियर फॉर आयोडीन. आप ऑब्जर्व करोगे क्लोरीन की वजह से इनका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. ओके, अब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी अगेन क्लोरीन इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट. हियर व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर इट प्रोड्यूसेस HCl and hypochlorous acid. Hypochlorous acid further decomposes to hydrochloric acid and this is your nascent oxygen. This is nascent oxygen and it plays very important role in a bleaching action. So when this nascent oxygen it come in contact with colored compound, तो आपका ये colored compound कैसा हो जाता है? It becomes colorless. ये nascent oxygen coloring matter को क्या कर देता है? Separate. Now let's discuss uses of chlorine. So it is used in the purification of water. Chlorine is used in a bleaching wood pulp, cotton and textile. ये सबको पता है कि जो हम कॉटन टेक्सटाइल में जो भी हम तैयार करते हैं मटेरियल, वुड पल्प की वजह से हम पेपर तैयार करते हैं, वो मडी कलर का रहता है और उसका मडी कलर हमको रिमूव करना है तो हम यूज़ करते हैं क्लोरीन का. देन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, ड्रग्स, some organic compound like carbon tetrachloride, then chloroform, DDT and refrigerant. In preparation of some poisonous gases, phosgene, tear gas and mustard gas. So these are the uses. अब हमारा दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड. नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है हमारा? दैट इज अ हाइड्रोजन क्लोराइड देयर. सो लैब प्रिपरेशन. So you can prepare hydrogen chloride by treating sodium chloride with concentrated sulfuric acid at 420 Kelvin. So it converts into the sodium hydrogen sulfate and hydrochloric acid. This sodium hydrogen sulfate further react with sodium chloride at same temperature. It gives you sodium sulfate and our major product hydrogen chloride. Then physical properties of hydrochloric acid. It is a colorless, pungent, smelling gas.
easily liquefied, boiling point 189 Kelvin, melting point 159 Kelvin, and it is highly soluble in water. Now let's discuss chemical properties. तो HCl जो है ये एसिडिक है, राइट? और अकॉर्डिंग टू अरेनियस हम हमेशा डिस्कस करते हैं जिस सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, इफ यू लिबरेट फ्री एच पॉजिटिव, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस आपका सब्सटेंस कैसा रहता है? एसिडिक. So what happens? This hydrochloric acid is treated with water, it liberate free H positive, और ये free H positive फिर से वाटर के साथ रिएक्ट होके किस में कन्वर्ट होते हैं? हाइड्रोनियम आयन में. डिसोसिएशन कांस्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है 10⁻⁷. मोर डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. देन रिएक्शन विथ अमोनिया. सो व्हेन ammonia reacts with hydrochloric acid, it produces ammonium chloride there. अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी वाइट और डेंस फ्यूम्स तैयार हो जाती है. क्या तैयार होती है? वाइट और डेंस फ्यूम्स. अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे गैसियस स्टेट में तैयार होता है, और अगर आपको ये अमोनियम क्लोराइड को क्या तैयार कर इसमें कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो हम क्या करेंगे? इसका फिर कंडेंसेशन करते हैं. देन रिएक्शन विथ नोबल मेटल. तो अब देखो, हमको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि जो नोबल मेटल है, अब कौन से नोबल मेटल्स हमारे पास अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है गोल्ड और प्लेटिनियम, राइट? सो दीज आर द नोबल मेटल. ये नोबल मेटल इजीली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते. नाइदर दे इजीली रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइदर दे रिएक्ट विथ इजीली नाइट्रिक एसिड, बिकॉज दे आर वेरी नोबल, राइट? इसीलिए हम क्या करते हैं? वी आर प्रिपेयरिंग एक्वा रिजिया. और एक्वा रिजिया it is the combination of hydrochloric acid and nitric acid, और इसका रेशियो रहता है 3:1. अब व्हाट हैपन्स कि आपका गोल्ड और प्लेटिनियम सिंगल HCl और नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट नहीं होता है, रिएक्ट नहीं होता है, लेकिन इट रिएक्ट्स विथ एक्वा रिजिया. ये इस मिक्सचर के साथ क्या होता है? रिएक्ट होता है. सो इन योर टेक्स्ट बुक this kind of the reactions are provided there. So this is a gold metal and it represent aqua regia. ये क्या represent कर रहा है? Aqua regia. And here gold, it dissolve in a aqua regia here. This is your platinum, another noble metal, and it represent the aqua regia there. Okay, it is the combination of the HCl and nitric acid in 3:1 ratio. यहाँ पे ये नोबल मेटल एक्वा रिजिया में क्या होता है? डिसॉल्व होता है. सो दीज रिएक्शंस आर डिस्कस्ड इन योर टेक्स्ट बुक. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो दीज रिएक्शंस आर बेटर देयर. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वा रिजिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये रिएक्ट होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं NaCl वाटर, एंड दे लिबरेट हियर दिस नेसेंट क्लोरीन देयर. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये जो नेसेंट क्लोरीन यहाँ पे तैयार होता है, ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड के साथ रिएक्ट होगा, उसको कन्वर्ट करेगा गोल्ड क्लोराइड में. प्लेटिनियम के साथ रिएक्ट होगा, उसको कन्वर्ट करेगा प्लेटिनियम क्लोराइड में. एंड देन दे रिएक्ट्स विथ HCl. गोल्ड कन्वर्ट इनटू द आयरोक्लोरिक एसिड and platinum it converts into the chloroplatinic acid there. So these are the simple reactions. How noble metal they reacts with aqua regia. Next, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड देयर. ओके, अब ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, तो इसमें हमको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैलोजन. सो हैलोजन सबको अच्छे से पता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. दिस आर योर हैलोजन्स. हैलोजन्स आर ऑलवेज डायटोमिक. वो हमेशा डायटोमिक रहते हैं, यानी क्लोरीन F2,
Br2. Halogen form binary compound with hydrogen. They form binary compound with hydrogen and they prepare HCl, they prepare HBr. अब यहाँ पे ये बाइनरी है क्योंकि ये दो एलिमेंट से तैयार हुआ है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. दे फॉर्म ऑक्सो एसिड्स विथ ऑक्सीजन. तो हमने 17 ग्रुप के ऑक्सो एसिड डिस्कस किए अब, जैसे कि HOCl, राइट, HOBr2. So these are the oxo acids of halogen. They form the interhalogen compound with halogens. Say for example ClF3. This is a interhalogen compound. अब इसी इंटरहैलोजन कंपाउंड के बारे में हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2 or more halogen atoms combine to form ionic or neutral molecule. अब सबसे important, interhalogen compounds are combination of atoms of different halogens. यानी different halogen के combination से आपका interhalogen compound तैयार होता है. जैसे for example, suppose I am having ClF3, I am having IF7. I am taking one more example here, ClF2. अब देखो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन डिफरेंट हैलोजन है, उसके थ्रू एक कंपाउंड तैयार हुआ है. आयोडीन और फ्लोरीन डिफरेंट हैलोजन है, उनके कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड तैयार हो गया है. क्लोरीन एंड फ्लोरीन, दिस आर 2 डिफरेंट हैलोजन. लेकिन यहाँ पे ये जो 2 कंपाउंड है ये कैसे है, न्यूट्रल. यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +3 और 3 फ्लोरीन की मिलके आ जाती है -3. तो आपका ये कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल. यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और 7 फ्लोरीन की टोटल आ जाती है -7. तो आपका ये कंपाउंड भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल. एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टेट दैट कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए आप उनको क्या कहोगे, इंटरहैलोजन कंपाउंड. अब ClF2, it is also combination of 2 different halogen compound but it is ionic. ये कैसा है, आयोनिक है. यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और दोनों फ्लोरीन की आ जाती है -2. तो आपका ये जो कंपाउंड है ClF2, it carries -1 charge. Means this combination is ionic and ionic compound, they are not interhalogen. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज द हैलाइड ऑफ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन. तो इसमें देखो हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में सोचते हैं. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 4, क्लोरीन की है 3, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन की है 2.5. दिस आर देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. नाउ यू ऑब्जर्व दिस कंपाउंड ClF. यहाँ पे आप देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आती है 3, राइट. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज द हैलाइड ऑफ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन. यानी यहाँ पे फ्लोरीन कैसा है, इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है, लेस, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है, लेस. अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है तो आप इसको क्या कहोगे, इट इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ हैलाइड. यानी अब यहाँ पे फ्लोरीन क्या हो गया, आपका हैलाइड हो गया. इट इज अ हैलाइड. इट इज अ हैलाइड ऑफ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन. यानी क्लोरीन को तुम क्या रेफर कर रहे हो यहाँ पे, हैलोजन. You take another example. Fluorine electronegativity 4, यानी फ्लोरीन इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव. आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, 2.5, यानी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है, लेस. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है यानी इसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में आपका आयोडीन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये कैसा रहेगा, इट इज़ अ हैलाइड.
ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन। यानी यहाँ पे फ्लोरीन इट प्लेज द रोल ऑफ द हेलाइड। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा आप उसको रेफर करोगे हेलाइड, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा आप उसको रेफर करोगे हैलोजन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। सो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला है XX-N। अब XX-N, यहाँ पे X- का मीनिंग क्या रहता है आपका, हेलाइड, और X का मीनिंग क्या रहेगा आपका, हैलोजन। ठीक है। सो यहाँ पे हमको 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड डिस्कशन के लिए XX-, XX-3, XX-5 एंड XX-7। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, अब यहाँ पे हेलाइड कौन रहेगा आपका, क्लोरीन। X- यानी क्या रहेगा, हेलाइड, और X क्या रहेगा आपका, ब्रोमीन। आप इसको क्या रेफर करोगे, हैलोजन। तो आपके इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा, फिर हम इसको कहेंगे मोनोक्लोराइड ब्रोमीन। इसको अल्टरनेटिव नेम भी आप दे सकते हो, इट इज अ ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। देन XX-3 एग्जाम्पल ClF3, इसका नेम क्या रहेगा फिर आपका, यहाँ पे ट्राई फ्लोराइड क्लोरीन। फ्लोरीन X- यानी रहेगा फ्लोरीन, दैट इज हेलाइड, और X यानी हेलोजन रहेगा आपका क्लोरीन। फिर XX-5 पेंटाफ्लोराइड ब्रोमीन। XX-7 का एग्जाम्पल हम लेंगे, इट इज हेप्टाफ्लोराइड आयोडीन, या फिर आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो अगर हम ये 4 एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जनरल एक कंक्लूजन रहेगा कि इफ दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ XX-N देयर, राइट, तो फिर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो X- है जिसको आप रेफर कर रहे हो हेलाइड, राइट, तो X- की एटॉमिक साइज हमेशा कैसी रहेगी, स्मॉल। किसके कंपैरिजन में, X के कंपैरिजन में। और जो X है, इस X की साइज कैसी रहेगी, बिग रहेगी, एटॉमिक साइज। एंड X को आप रेफर क्या कर रहे हो, हैलोजन। इसके अलावा X- यानी जो आप जिसको आप हेलाइड रेफर कर रहे हो, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी रहेगी, हियर मोर। और जो आपका हैलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी ये कैसा रहेगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देयर। नाउ these are some examples of or some structure of the interhalogen compounds there. Iodine dichloride structure is linear. क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, आप इसको ट्राइफ्लोराइड क्लोरीन भी कह सकते हो, ओके, इट इज अ बेंट टी शेप्ड। फ्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एंगल 89 डिग्री है। देन ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड बेंट टी शेप, ब्रोमीन फ्लोरीन ब्रोमीन बॉन्ड एंगल 86 डिग्री। उसके बाद ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल। देन पेंटाफ्लोराइड क्लोरीन या फिर क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ज्योमेट्री इज अ स्क्वायर पिरामिडल। ओके, अब ये पॉइंट हम एक बार फिर से इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिस्कस की थी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी थी, 4, और क्लोरीन की कितनी है, 3, राइट। तो यहाँ पे ClF3 का एग्जाम्पल फिर से आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है 4, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है 3, लेस, यानी ये कैसा रहेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये कैसा रहेगा आपका क्लोरीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव देगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। So here they are halides of more electropositive halogen, that is a halide of X. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वहाँ पे कि यहाँ पे ये कैसा रहेगा, इट इज़ अ हेलाइड ऑफ हेलोजन मोनोफ्लोराइड ऑफ द क्लोरीन. एज द रेडियस रेशियो इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो इंक्रीजेस. अब यहाँ पे फिर से आप ऑब्जर्व करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, these are your halogen. फ्लोरीन इज अ स्मॉलेस्ट, क्लोरीन इज अ बिग, ब्रोमीन उससे भी बड़ा है और आयोडीन कैसा है सबसे बिगर है. Now what is our this discussion? You observe this हेप्टाफ्लोराइड आयोडीन. यहाँ पे मैं अगर आयोडीन और फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस कंपेयर करती हूँ तो आयोडीन और फ्लोरीन के एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये बहुत ज़्यादा है, राइट. तो यहाँ पे जो n की वैल्यू रहेगी, ये n की वैल्यू कैसी रहेगी, मोर रहेगी. अब आपको पहले तो n की वैल्यू क्लियर हो गई है क्या, वो आप पहले क्लियर कर लो. देखो हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ x x डैश n. सो व्हाट इज n हियर, n मीन्स नंबर ऑफ हैलाइड्स. जैसे कि यहाँ पे ClF3 में n क्या है 3 है. आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, IF7 व्हाट इज n, n इज 7. BRF5 व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 5. तो अब यहाँ पे आप देखो, हम डिस्कस कर रहे थे एज द रेडियस रेशियो इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इस कंपाउंड में फ्लोरीन और आयोडीन इन हैलोजन के एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. उनका रेडियस रेशियो क्या है, मोर है. तो एन की वैल्यू यहाँ पे मोर है, यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या है 7. वही आप मोनोफ्लोराइड क्लोरीन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन के बाद तुरंत क्लोरीन आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है एटॉमिक साइज का, दिस इज नॉट मच. उनका रेडियस रेशियो क्या है, इट इज नॉट मोर, इट इज अ लेस. तो यहाँ पे इस कंपाउंड में n इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है. नेक्स्ट वन, इवन नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन इंटरहैलोजन कंपाउंड. तो यहाँ पे देखो दिस वन एग्जाम्पल ट्राईफ्लोराइड क्लोरीन. तो इसमें 3 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन, टोटल एटम्स कितने हो गए 4. इन दिस एग्जाम्पल 7 फ्लोरीन 1 आयोडीन, टोटल एटम्स कितने हो गए 8. हियर ऑब्जर्व टोटल एटम्स 2. तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड है उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमेशा कैसे रहते हैं, इवन, राइट. और एक ऑब्जर्वेशन है कि हमेशा n कैसा रहेगा, ऑड रहेगा. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. तो n की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1, 3, 5 और 7. इट इज ऑलवेज ऑड देयर. लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे रहेंगे, हमेशा कैसे रहेंगे, इवन रहेंगे. उसके बाद नेक्स्ट, properties of interhalogen compound are generally intermediate between those of halogens from which they are made. जैसे for example you took this example, that is chloride of a bromine या फिर bromine monochloride. This compound is made up with the help of 2 halogen, bromine and chlorine. तो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी इन 2 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को कैसी रहेगी, इंटरमीडिएट रहेगी. The central halogen exhibit different oxidation state. So you observe these are 4 example. अब देखो यहाँ पे क्लोरीन इज अ सेंट्रल एटम, आयोडीन इज अ सेंट्रल एटम, आयोडीन इज सेंट्रल एंड क्लोरीन इज अ सेंट्रल एटम. हियर यू कलेक्ट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. ये रहेगी +3, ये आ जाती है +7, +3 एंड दिस इज अ +1. तो जो सेंट्रल एटम रहेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी. ये पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है. एक्स डैश एटम्स आर ऑलवेज ऑड,
दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. इसमें जो हेलाइड है, जो एक्स डैश है, वो कैसे रहेंगे? ऑड. 5 फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, ऑड नंबर. एंड ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड्स दे आर डायमैग्नेटिक. उसके बाद हमको डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ एक्स एक्स डैश एन, दैट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड की प्रिपरेशन. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्स एक्स डैश, जिसमें n इज इक्वल टू 1 है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. सो यू कैन प्रिपेयर हियर मोनोफ्लोराइड क्लोरीन by treating directly chlorine and fluorine at 523 Kelvin in presence of copper. Iodine and chlorine directly treated in presence of HCl nitric acid and they are boiled. You are getting here monochloride iodine. Bromine is directly treated with chlorine. You are getting here chloride bromine there. Okay. और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम सबके इक्वल वॉल्यूम ले रहे. क्लोरीन फ्लोरीन दे आर ट्रीटेड इन अ इक्वल वॉल्यूम. आयोडीन क्लोरीन दे आर ट्रीटेड इन अ इक्वल वॉल्यूम. Now you can prepare trifluoride chlorine by treating excess fluorine with chlorine. Trifluoride bromine by treating bromine with fluorine. Iodine trichloride is prepared by treating excess chlorine with iodine. So these reactions are very simple. You can prepare some interhalogen compound by treating halogens with interhalogen. अब देखो ब्रोमीन ये हैलोजन है, ट्राईफ्लोराइड ब्रोमीन ये क्या है आपका इंटरहैलोजन है. सो दे रिएक्ट एंड दे कन्वर्ट्स इनटू द मोनोफ्लोराइड ब्रोमीन हियर. ब्रोमीन इज अ हैलोजन, ट्राईफ्लोराइड क्लोरीन इज अ हैलोजन हियर. तो आपको देखो दूसरे दो इंटरहैलोजन कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्राईफ्लोराइड ब्रोमीन, मोनोक्लोराइड ब्रोमीन. लेकिन अगर आपको मोनोक्लोराइड आयोडीन प्रिपेयर करना है तो सम स्पेशल रिएक्शन इज प्रोवाइडेड इन योर टेक्स्ट बुक. आयोडीन is treated with potassium chloride. You are getting here monochloride iodine here. Now we are discussing thermal stability. So you observe here monofluoride chlorine is the most stable, thermally stable है, और monofluoride bromine is the least stable है. अब ये स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होगा? डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रॉन्ग. नाउ व्हाई दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग? तो उसका रीजन इन दोनों की एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी कैसी रहेगी? स्मॉलर होगी. इट इज अ स्मॉल, राइट, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, तो आपका कंपाउंड कैसा है? स्टेबल रहेगा. नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. तो यहाँ पे आप देखो मोनोक्लोराइड ब्रोमीन इज ट्रीटेड विथ वाटर. यू आर गेटिंग हाइपोब्रोमस एसिड HCl. मोनोक्लोराइड आयोडीन इज ट्रीटेड विथ वाटर, आयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आयोडीन. ट्राइक्लोराइड आयोडीन इज ट्रीटेड